Good afternoon, everyone. Happy New Year. Good afternoon, ma'am, and Happy New Year. How are you all doing? Fine, ma'am. I'm doing Good good. afternoon, ma'am. Good afternoon. Happy New Year. Hello, Happy ma'am. New Good Year. afternoon. Happy New Year, Good Good everyone. afternoon. Good Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. How are you all? Fine, ma'am. Happy New Fine, Year. ma'am. Happy New Good. Year, ma'am. Good afternoon, Bhavna, ma'am. Good Good afternoon, all the afternoon. teachers. A very happy New Year, all of you. Good Same to you, afternoon, ma'am. ma'am. Hope Happy New you Year. have a great weekend. Enjoyed a lot. And home assignments भी करे हैं, सिर्फ enjoyment ही होती रही है. I hope so. सबने अपने home assignment submit कर दिए होंगे. उसी के basis पे हम लोग आपको certificate देंगे. And there's So, Bhavna another ma'am, we can assignment start with coming. the training. Shweta, another assignment coming their way. Okay, another assignment is there for the new year. Great. Yes. Great. So you can start with the meeting, ma'am. Yes. Thank you. Thank you, Shweta. All right. So I see there are a whole lot of people today. But let's do a quick reflection, right? Of what we have done so far. Teachers, can we do that? एक जल्दी से एक recap करेंगे, एक reflection करेंगे about अभी हमने क्या बात करी थी in the last session, right? So the last session, it was about module 2, pedagogy, play, and we talked about anybody remember what did we talk about? Anything? I know. Environment. Environment. Lovely. Thank you, Jeenath. Physical And environment, nature, and social environment. can you repeat Nature. once again, Aarti? Physical Nature. environment, natural environment, social environment. Lovely. Lovely, Priyanka. Thank you, ma'am. So 3 types of environment. And then we talked about that how environment is called the third Third teacher. teacher. Very good. Lovely. And now when we start teaching with play in the center, what did we start talking about? Approaches to teaching, right? We started talking about there are different approaches to teaching. Do you remember the name of those approaches? Ma'am, theme-based, Right. story-based, project-based. Lovely, lovely. Great, great. So it was theme based, it was story based, and we discussed about project based. And under the which umbrella, bigger umbrella, सबसे बड़ा छाता कौन सा है? Under which all these approaches fall? Inquiry-based. Inquiry based learning, right? And inquiry based learning is based on some principles. Remember? We talked about those principles. So, those who were not there, how many of you were there in the last session? Can you please turn on your videos or show thumbs up on your thing? Good, very less people. All right. So, today we are going to start. Good. We are going to continue about our topic approaches to learning, right? That how we are going to teach in a foundational year class में हम कैसे पढ़ाएंगे. हमने inquiry based learning की बात करी थी. एक बार let's quickly look at all the features that we discussed
about approaches to teaching. All right, can you see my screen, everyone? Ma'am. Yeah, good. So everybody remember that हमारी जो NEP ने हमें pedagogy करी है, that is based on play. Play के 6 elements है: conversation, stories, toys, music, art and craft, nature walks and field trips. जब हम ये 6 elements को इकट्ठा करते हैं तो हम उसे कहते हैं a playful learning, right? जब हम प्लेफुल लर्निंग की बात कर रहे थे, देन वी टॉक्ड अबाउट दैट ये जो आपकी सारी चीजें हैं वो किसके अराउंड इवॉल्व करती हैं, हम बच्चे को क्या नॉलेज इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, इट इज वेरी क्लोज रिलेटेड टू देयर एनवायरमेंट. जो कुछ भी बच्चे सीखते हैं, वट एवर इंफॉर्मेशन दे गैदर, जो कुछ भी वो जिज्ञासा रखते हैं जानने के बारे में, वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, वो सब इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है. एंड एज प्रियंका, रुचि, जीनत rightly gave the answer that there are 3 types of environment: physical environment, right, जिसमें बच्चा बैठता है, उसका अपना बॉडी का एनवायरनमेंट, जहां पे घर का एनवायरनमेंट वो उसका फिजिकल एनवायरनमेंट है, राइट. नेचुरल एनवायरनमेंट इज अ एनवायरनमेंट जो उसके आसपास नेचर में है, राइट, जिसके अंदर आपके animals, trees, sand, all elements. Social environment, the people who exist in our environment, right? Those who were not there, please look at this carefully once again. Abhi, I got a very good answer and I'm so glad that you remembered inquiry-based learning. This is a approach which talks about that rather than telling children or teaching children, let the children inquire on their own. बच्चों को पढ़ाने की जगह हम एक ऐसी अप्रोच टीचिंग की अडॉप्ट करें जिसमें बच्चे खुद चीजों को के बारे में इंक्वायर करें, राइट. और हम लोगों ने अभी बहुत सारी रिसर्च पढ़ी है जिसमें हमने ये जाना कि बच्चे जो होते हैं उनके न्यूरॉन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं. ब्रेन डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था, हमने सिनेप्टिक कनेक्शंस के बारे में पढ़ा कि जैसे जैसे नई चीज़ें आती हैं, बच्चे सेंसरी मोटर स्टेजेस में होते हैं, जितना हम उनको सेंसरी मटेरियल देते हैं, मिट्टी देते हैं, चीज़ें देते हैं और उनको फील करने को बोलते हैं, परसेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स बन रहे हैं. वो कैसे बन रहे हैं? जब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है तो सिनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, राइट. एसिमिलेशन, एकोमोडेशन होती है. इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में जब बच्चे अपने आप क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनको कोई टास्क देते हैं और उसको करते हुए उनके दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं, उनके दिमाग में क्यूरोसिटी आती है. That is the entire thing, element, principle on which inquiry based learning is based. Hands-on exploration, observation and investigation, right? Make sense, teachers? Yes, ma'am. अब जब हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के बारे में बात कर रहे थे, देयर आर लॉट ऑफ, हम इनको बोलते हैं एक्लेक्टिक अप्रोचेस. एक्लेक्टिक अप्रोचेस मीन्स डिफरेंट अप्रोचेस हैं जो कि आप एक लेसन पढ़ाते वक्त, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाते वक्त आप थीम बेस्ड भी कर सकते हो, उसमें स्टोरी भी है, बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमेशा इंक्वायरी ड्रिवन है. क्या है? इंक्वायरी ड्रिवन है, राइट. और इसमें जो एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, कैन समबडी टेल मी, जो हमने बात करी थी, टीचर जो है फैसिलिटेट कर रही है और टीचर क्या कर रही है? बच्चों से एलिसिट कर रही है. क्या कर रही है? एलिसिट कर रही है. एलिसिट मीन्स दैट द टीचर इज throwing questions and telling children to think deep. हम बच्चों को आंसर्स नहीं दे रहे हैं, हम बच्चों से आंसर्स निकलवा रहे हैं बाय आस्किंग देम डीप क्वेश्चंस, जो कि हम आज के सेशन में जिसके बारे में हम और जानेंगे.
इस इस प्रिंसिपल को, इस टेक्निक को क्या कहते हैं? एलिसिटेशन। क्या कहते हैं? एलिसिटेशन। All right. Those who were not there, let's quickly go through. I will turn it into a slideshow. Let's quickly go through the approaches. Everybody is able to read? No, ma'am. This is the maximum I can do. So I'll read it out for you. The first is project-based approach. Project-based approach talks about a question, a driving question. There is always a big question that the child has to, and the teacher भी learner है, सब मिलके इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं. हाउ कैन वी ग्रो एंड केयर फॉर अ प्लांट? What does your plan need to grow? How is your plan changing? और हम मैथ्स भी, लैंग्वेज भी, ईवीएस भी सब इसके थ्रू पढ़ा रहे हैं. और बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, खुद जर्मिनेशन प्रोसेस को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं. स्टोरी बेस्ड अप्रोच, right? Here there is not a driving question, but the children are getting all the information about the nature or the creatures from through listening to a story. Okay? And in the theme based, again, not a big driving question, but we are trying to put all the knowledge, हम सारी knowledge information को एक connecting theme के थ्रू एड्रेस कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे ट्रांसपोर्ट को एक थीम बताया हुआ है, राइट? द थीम हियर डिस्कस्ड इज ट्रांसपोर्ट. दैट हम कैसे ट्रैवल करते हैं, यहाँ जाना होगा तो हम कैसे करेंगे. सो वी आर बिल्डिंग कॉन्वर्जेशंस. So the other day when we were discussing about these three approaches under the inquiry based approach, वहां पे आप लोगों ने मुझे बताया कि 3 चीजें निकल के आई थी इस अप्रोच से. इन सब में जो कॉमन है, आपने सबने बताया कि इसमें सबसे पहले क्या चीज है इन तीनों अप्रोच में कॉमन? Thinking. You're asking children to think, right? And Environment based. very good. Learning. Learning, tell me more. Challenging problem. Very good. There is a challenging problem, right? Just think about this, where my cursor is. Think about learning areas, concept, integration. Nature. Of course, there is nature. Interdisciplinary, subject integration. Subject integration, interdisciplinary, right? Observation. Observation is a skill or a content? Skill. Skill. Lovely, very good. Carefully look. The outcomes are building inquiry, observation, responsibility, ownership. किसी भी आउटकम में ये लिखा गया है कि child will be able to name 5 transport. Child will be able to tell about the steps in germination process. Multidisciplinary system. It is multidisciplinary. Also, the outcomes are in terms of the skills that we are trying to build in the children. Observation is a skill. Ability to differentiate, एक को दूसरे से differentiate करना is also skill. So all the 3
approaches are talking more about skill, right? Do you agree with me? Yes, ma'am. All right. Now we move to the next thing, which we were talking about, a video. Do you all remember the video we had seen? How many of you were not there the other day? So I'll give you a brief about this video. It talked about a project based learning approach where the children were trying to find out about a lion, right? Where does he live? How does he live? What is a kind of environment, right? And they try to understand कि हम उसके लिए कैसे environment create कर सकते हैं, उसके लिए कैसे physical environment create कर सकते हैं, वो कहाँ रहेगा, वो किन कौन उसके फ्रेंड्स होंगे, कौन उसकी फैमिली होगी. And also literacy aspect. Okay, line starts with so what are we hearing, what are the other things that are with the same sound as right? So there's numeracy, how many ears would a lion have, how many people in his family. So everything was integrated and children were doing a lot of research, right? Because बच्चों की research क्या होती है, when they ask you more questions, right? When they try to think in their imagination and give you answers. When you give them questions जिनसे वो encyclopedia आप खोलने पे वो खुद देख के कर सकते हैं कि yes, हमने encyclopedia में पढ़ा, हमने पिक्चर देखी पिक्चर बुक में, and this is what we realize कि एक लायन का घर लग सकता है, लायन की ऐसे ऐसे फीचर्स होते हैं फेस पे. सो द चाइल्ड इज ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर अबाउट लायन रादर देन अ टीचर टेलिंग कि लायन ऐसा होता है, लायन ऐसे घर पे रहता है, राइट? सो एवरीथिंग इज वेरी इंक्वायरी बेस्ड. I would like to, I think we'll just skip this video and probably move. So when you saw that video, हमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन निकल के आया था कि मैम हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है, हम चाहते हैं कि बच्चे क्वेश्चन पूछें, तो हम ये कैसे करवा पाएंगे विद इन अ शॉर्ट ड्यूरेशन. सो वी ऑल डिस्कस दैट दिस इज अ आर्ट ऑफ एलिसिटेशन. एज अ गुड इंक्वायरी टीचर जो आप ये कोर्स कर रहे हो, इसको आपको करवाने का ही ये मतलब है दैट यू शुड बी एबल टू डेवलप योर लेसन्स, डेवलप योर थीम्स. ऐसे आप अपने थीम्स को और लेसन्स को डेवलप करिए ताकि वो क्वेश्चंस जो आप बच्चों की अटेंशन जिन पे ले जाना चाहते हो, यू शुड बी एबल टू राइट देम डाउन, before you start thinking that I'll do activity number 1, activity number 2 or activity number 3. So coming to the point, जो हमने इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच जिसमें एक ड्राइविंग क्वेश्चन होता है, आप सबने देखा. The thing which we have to look, what are some of the common things there? So the video that you saw the other day, was there joy, choice and wonder? क्या बच्चों को जॉयफुलनेस फील हुई? बच्चों के पास चॉइसेस थी जब वो बच्चों का एनवायरनमेंट, लाइन का एनवायरनमेंट बना रहे थे क्लास के अंदर? क्या वो अपना मटेरियल चूज कर सकते थे जिससे वो ग्रास लैंड बना सकते हैं, जिससे वो लाइन का घर बना सकते हैं? वॉज देयर चॉइस? यस और नो? चॉइस मीन्स द चाइल्ड गेट टू, उसको मिलता है कि मैं इसे कैसे करना चाहूंगा, मैं इसे ड्रॉ करूंगा, मैं इसको इस तरीका से बनाऊंगा, मेरा डिजाइन ऐसा होगा. आर देयर चॉइसेस? यस? Yes, ma'am. Wonder. Were the children asking questions? इसकी मूछें क्यों होती हैं, इसके कान ऐसे क्यों होते हैं, इसके टीथ कैसे होते हैं, वो कैसे खाता होगा, वो कैसे पकड़ता होगा? Was there wonder, right? और वो वंडर जो होता है ना, वो तब क्रिएट किया जाता है टीचर्स, जब आप
बच्चों को ये दो नीचे की तीन चीजें देते हैं: स्पेस टू एक्सप्लोर, स्कोप टू आस्क क्वेश्चंस, स्कोप टू क्रिएट एंड डिजाइन, elements of play, conversations. What do you think, Priyanka? What do you think, Vandana? अगर आपको अपनी क्लास में ऐसे करना है वंदना, तो आप क्या चीज चेंज करोगे? राइट? डोंट गिव मी द आंसर राइट नाउ, लक्ष्मी, जस्ट थिंक अबाउट इट, पूर्णिमा, फिर सोच के मुझे बताओ. What I am trying to give you is the response time. जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ 2 मिनट के लिए रुकिए और सोचिए. राइट? जो जो हम पॉज करते हैं उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है ब्रेन में. हम अपनी ब्रेन को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का टाइम देते हैं, पर क्लास में ना हम बच्चों से जल्दी से आंसर निकलवाना चाहते हैं. राइट? वी रियली, बिकॉज हमें लगता है कि हमारे पास 20 मिनट्स है, इसी में हमने आज सारा ज्ञान दे देना है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज, अभी जब आप मेरे स्टूडेंट्स बने हुए हो, तो आपको भी लगता होगा कि ओ माय गॉड, शी इज स्पीकिंग सो मच, देयर इज सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन. बोली थी कॉन्वर्जेशन की, कौन सी थी, स्ट्रक्चर्ड थी, गाइडेड थी, फ्री कॉन्वर्जेशन थी, क्या टाइप्स थे? राइट? बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में सेटल होती है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में. उसको रिट्रीव करना, रिट्रीव मींस उसको दोबारा लेके आना, कनेक्शन बिठाना, एसोसिएशन बिठाना, में ब्रेन को टाइम लगता है. राइट? Right. और बच्चों के पास इतनी वोकैबलरी धीरे धीरे डेवलप हो रही है. राइट? कुछ बच्चों के पास बहुत अच्छी वोकैबलरी होती है, कुछ बच्चों के पास लेस वोकैबलरी अवेलेबल होती है उसको समझने की और समझाने की. सो अगर आप अपने बच्चों को स्कोप देते हैं एक्सप्लोर करने का, then that is a first space that you give for inquiry classroom. I would like all of you to please look at the first question in this circle. Open-ended questions. Second is themes from immediate environment. एक बच्चा जो 3 साल का है या 4 साल का है, उसके इमीडिएट एनवायरनमेंट में जो उसको अट्रैक्ट करता है वो इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, प्लांट्स हैं, कार्टून कैरेक्टर्स हैं, टॉफीज हैं, चॉकलेट्स हैं, फेस्टिवल्स हैं, लोग हैं. राइट? क्या एक छोटे बच्चे को मैटर करेगा कि कितनी नदियां होती हैं या सूरज और तारे कौन सी रोटेशन में घूमते हैं? वुड इट इंटरेस्ट अ चाइल्ड? No, ma'am. Not at all. No, ma'am. इंटरडिसिप्लिनरी, अभी हमने बात करी. बच्चे चीजों को जब कनेक्शंस में देखते हैं, जैसे हमने बात की कि एलिमेंट्स ऑफ प्ले है, फ्री है, स्ट्रक्चर्ड है, गाइडेड है, उसी तरह अप्रोचेस टू टीचिंग है, वो 3 तरह की हैं. राइट? तो हम बात कर रहे हैं पेडागोजी की. राइट? बट हम ऑल्सो वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट कि हमें पढ़ाना क्या है बच्चों को. राइट? सो एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. तो जब आप बच्चों को वो कनेक्शंस देखना सिखाते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल. राइट? और वो कनेक्शंस हम कैसे देखते हैं? जब हम बच्चों को प्रिडिक्शन करते हैं, जब हम बच्चों को डिफरेंशिएट करने को बोलते हैं चीजों को, जब हम बोलते हैं अब आपको क्या लगता है इसके बाद क्या होगा, एंड दैट मीन्स बच्चा ऑब्जर्व करना, ज्यादा सोचना शुरू करता है कि हाँ मैम ने पूछा इसके बाद क्या होगा. राइट? देन ही स्टार्ट्स मेकिंग नोट. सो दिस इज इंटरडिसिप्लिनरी. एक्सप्लोरेशन, अगेन जब आप बच्चों को हैंड्स ऑन एक्टिविटीज करने देते हैं. कोलैबोरेशन, ग्रुप वर्क. राइट? जब दो लोग मिलके आपस में एक एक्टिविटी करते हैं, अभी जो भी आपको मैं असाइनमेंट दे रही हूँ, अगर मैं आपको वो ग्रुप असाइनमेंट दूं, आपको लगता है वो आपके लिए इजियर और ज्यादा इनोवेटिव होगा करना एज कंपेयर टू अकेले अकेले करना? दैट्स अ थंब रूल. लर्निंग सबसे ज्यादा तब होती है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं.
And in my vocabulary, I always say as an inquiry teacher, cheating is collaboration, collaborating is cheating. Cheat as much as you can. Because जब आप cheat करते हो तो आप दूसरों के आइडिया से सीख रहे हो. Really doesn't matter कि मेरे पास एक आइडिया और आपके पास चार है. आज हो सकता है मेरे पास एक आइडिया आपके पास चार है, बट मैं कॉन्स्टेंटली आपके साथ बात करूंगी तो कुछ दिन बाद मेरे पास 8 आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज माई ब्रेन विल स्टार्ट वर्किंग, राइट? क्योंकि मेरी ब्रेन को स्टिमुलस मिल रहा है. सो कोलैबोरेशन and problem solving, how does this help the children? जब हम सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे थे तब हमने देखा कि बच्चे कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर कर रहे हैं, राइट? वो चलना सीख रहे हैं, वो क्रॉल करना सीख रहे हैं, उनका न्यूरॉन पाथवेज बहुत जल्दी बन रहे हैं. सो चिल्ड्रन आर ऑटोमेटिक प्रॉब्लम सॉल्वर्स. वो चीजों को तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, फिर तोड़ते हैं फिर जोड़ते हैं, राइट? आपने कभी कोई एक बच्चा देखा है जो कि ऐसा ना करता हो? सब बच्चे करते हैं. वो उनको क्या करवा रहा है? उनकी ब्रेन, द ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली बिल्डिंग स्कीमास कि अब मैं इसको ऐसे करता हूं तो ये ऐसे हो जाता है, पजल को तोड़ता हूं तो इसके 4 टुकड़े होते हैं, राइट? सो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज बाय नेचर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ब्रेन. अगर वो स्टिमुलस बच्चे को नहीं मिलेगी देन उनके पास डिलेज हो जाएंगे, डेवलपमेंटल डिलेज होंगे बच्चों में. उनकी कैपेसिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन कम कर रहे हैं आप. जितना आप उनको प्रॉब्लम्स दे रहे हैं उनकी एबिलिटी टू डेवलप न्यूरॉन्स डेवलप हो रही है. एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो मैंने यहां पे लिखा है, इसको 2 बार भी लिखा है, प्रोसेस ओवर प्रोडक्ट, राइट? आप सबको मैंने डक बनाने को दी थी एक बार हमने जब लास्ट किया था. फिर मैंने आपको एक रिडल्स दी थी, किसी ने आंवला निकाला, किसी ने नींबू निकाला, राइट? उस प्रोसेस में मैं राइट आंसर नहीं ढूंढ रही थी, मैं सिर्फ ये देख रही थी कि एक डक कितनी तरह से कौन बना सकता है, राइट? सो समटाइम द इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग सेज इट इज नॉट कि आपका जो घर आपको चाहिए, जो आपने लाइन का बनवाना है, हर एक बच्चे का टीचर के जैसा घर बनना चाहिए जैसा टीचर चाहती है. इट कुड बी अ रेक्टेंगुलर हाउस, इट कुड बी अ ट्रायंगुलर हाउस, इट कुड बी, बिकॉज हम प्रोसेस को देखना चाहते हैं कि बच्चे की इमेजिनेशन क्या है, कि वो कैसा घर बनाता है, रादर देन कि वो सही घर बनाता है या गलत घर बनाता है. डू यू ऑल अग्री विद मी? Yes. राइट? Yes, सो ma'am. दीज आर सम ऑफ द एलिमेंट्स जिसके बारे में आज हम इस सेशन में बात करेंगे. उसके बाद एक वर्ड जो मैंने सबसे नीचे, सबसे व्हील में सबसे ऊपर आता है, ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस. व्हाट डज ऑथेंटिक मीन्स? रियल लाइफ. कोई भी एक्सपीरियंस जब तक वो रियल लाइफ नहीं होता, जब तक आप उसको जाकर होता हुआ नहीं देखते हो या आप उसको करते नहीं हो. अगर मैं आप सबको इंक्वायरी बेस का पूरा बता रही हूँ, पर क्या आप कल क्लास में जाके उसको करना शुरू कर दोगे? इट विल टेक टाइम. आप उसको तब कर पाओगे जब मैं आपको छोटी छोटी एक्टिविटीज दूंगी और मैं आपको बोलूंगी अब आप अपनी क्लास में मुझे असाइनमेंट करके दिखाइए. अब आप मुझे दिखाइए कि अगर मैं आपको ये थीम देती हूँ तो आप कौन सा क्वेश्चन बनाएंगे, आप कौन सी 4 एक्सपीरियंसेस प्लान करेंगे. धीरे धीरे आपको एक चेकलिस्ट मिलेगी. क्या उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन थे? आप बोलोगे थोड़े से थे, थोड़े नहीं थे. क्या थीम्स जो आपने ली थी वो बच्चे के इमीडिएट एनवायरनमेंट थे? थी, नहीं थी. क्या वो इंटरडिसिप्लिनरी था, राइट, या नहीं था? तो ये जो आपको यहाँ पर 6 to 7 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये आपकी एक इंक्वायरी बेस की चेकलिस्ट है. जब आपके लेसन में ये सारी चीजें होती हैं, देन दैट मीन्स यू आर लीडिंग एन इंक्वायरी बेस्ड क्लासरूम. मेकिंग सेंस टीचर्स? ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस मीन्स जब आप बच्चों को रियल टाइम एक्सपीरियंसेस अप्लाई करने को देते हो, राइट? हमने वीडियो दिखा दिया लायन का, हमने डेन दिखा दी, केव दिखा दी, राइट? पर अगर हम उन्हें एक जंगल सफारी पे ले जाते या फिर हम उनको कहते कि चलो हम इसके लिए ग्रासलैंड बनाएंगे, बाहर से घास लेके आएंगे,
Which is more authentic experience, watching a YouTube video or creating a grassland for the lion? कौन सा एक्सपीरियंस ज्यादा ऑथेंटिक है? Creative. Creating a Designing and grassland. creating. Create और आपको grassland. ऐसा, एंड टीचर लेट मी टेल यू, आपको उस वक्त ऐसा लगेगा कि व्हाट इज द मेस आई हैव क्रिएटेड इन माय क्लास, ये मैंने आज अपने सर पे क्या हेडेक ले लिया है. बट रिमेंबर दिस, अ मेसी क्लासरूम, an inquiry classroom is always a messy classroom. A controlled classroom, जहां पर chaos नहीं होगा, जहां पर शोर नहीं होगा, जहां पे confusion नहीं होती, जहां पर बच्चे क्रिएटिवली बात नहीं कर पा रहे हैं, राइट, बच्चे आपस में ग्रुप में वर्क नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहे हैं, वो इंक्वायरी बेस्ड क्लास नहीं है, वो एक टीचर लेड क्लासरूम है, राइट. आपको ये कंट्रोल एज एन इंक्वायरी टीचर छोड़ना पड़ेगा. You will have to leave behind being a teacher and you have to become more of an inquiry teacher who is ready for chaos, who's ready for कि मैंने सोचा तो ये था पर बन ये गया, राइट. कई बार हम बेस्ट लेसन प्लान लेके जाते हैं और योर चिल्ड्रन आर नॉट रेडी, राइट. और आप चाहते हो कि मैं ऐसा क्रिसमस ट्री बनाऊंगी पर बच्चे पूरा उसको मेसअप कर देते हैं. बट जब आप उनके साथ कॉन्वर्जेशन शुरू करते हो उस बारे में करना, राइट, तो उनके थॉट्स निकल के आते हैं. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज वो चाहे आपको एक परफेक्ट पिक्चर बना के नहीं दे सकते, बट जब आप उनसे बात करते हो वो अपनी इमेजिनेशन को धीरे धीरे एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, विच इज वेरी क्रिएटिव, राइट. So that is why conversation is a very important element of play. कि आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एक बच्चे को, सब बच्चों ने क्रिसमस ट्री बनाया, किसी बच्चे ने बिल्कुल काला सा गंदा सा सारी फेविकॉल और आपके स्टार्स मिलाकर एक बड़ा शैबी सा, आपकी लैंग्वेज में शैबी क्रिसमस ट्री बनाया. पर जब आप बच्चे ने, आपने पूछा, ओ बड़ा डिफरेंट क्रिसमस ट्री है, कैसे सोच के आपने बनाया, तो वो एक स्टोरी शुरू होती है बच्चे की. मैंने ना इसको ऐसे किया था, फिर ऐसे मैंने इसको बहुत जोर की दबा दिया, राइट. एंड देन ही इज, इसकी वोकैबुलरी डेवलप हो रही है बिकॉज ही इज लर्निंग टू फ्रेम अ सेंटेंस टू टेल यू व्हाट डिड ही डू, राइट. आपने उसको कोई स्क्रिप्ट नहीं दी है, कोई आंसर नहीं दिया है जिसको रट के वो आंसर दे रहा है, वो अपने माइंड में स्क्रिप्ट क्रिएट कर रहा है. एंड टीचर्स, ट्रस्ट मी, द चाइल्ड हु कैन स्पीक हिज थॉट्स will definitely become a child who will be able to also write his thoughts nicely because his imagination and ability to connect it with words is going to be good, क्योंकि उसकी जो सोचने की शक्ति है और उस जो वर्ड से एक्सप्रेस करने की जो स्किल है वो दोनों कंबाइन होंगी. ओके, सो let's talk a little more about how do we create a inquiry approach classroom. Okay, now अभी हमने इस बारे में बात करी कि skills over the content. हम शुरू से इसके बारे में बात कर रहे हैं कि जब आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करते हैं तो आप स्किल्स को सेंटर में रखते हैं. आप ये सोचते हैं कि मुझे आज बच्चों को क्या पढ़ाना है, बट उससे पहले आप ये भी सोचते हैं कि मुझे कौन कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, राइट. कौन कौन से डोमेन्स जो है बच्चों के डेवलप करने हैं, कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, एस्थेटिक एंड मॉरल डेवलपमेंट, राइट. इन 4 डेवलपमेंटल एरियाज कौन कौन से मैंने एक्सपीरियंसेस प्लान किए जो कि डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट थे. कौन कौन सी स्किल्स मैंने, ऑब्जर्वेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्सप्लोरेशन, compare and contrast, right. So skills will be in the center and then you will think about that आप इनको कंटेंट में क्या बताना चाहते हैं. You should be, they should be able to tell you that you know how does a lion look like. They can draw a lion and show you what does a lion look like. तो वो आपका कंटेंट है, right. Is that making sense?
ओके, अभी हमने बात करी थी फर्स्ट थिंग कि आज हम इन सारे 6 एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चन, आप सबने बोला कि प्रोजेक्ट बेस्ड, थीम बेस्ड में हम बच्चों को ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं? ओके, मैं थोड़ा सा नेम कॉल आउट करती हूँ और पूछती हूँ आपसे, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई? वंदना सिंह फ्रॉम कोटा, स्काई का ब्लू कलर क्या होता है? ब्लू ब्लू होता है। ओके, अब मैं एक दूसरा क्वेश्चन पूछ रही हूँ वंदना, यस आपने मुझे इसका आंसर बताना है। व्हाट मेक्स यू थिंक दैट स्काई इज ब्लू? आपको क्यों लगता है कि स्काई ब्लू है? एक्सक्यूज मी मैम। नो वरीज। आप टीचर्स दोनों क्वेश्चंस को कंपेयर कर रहे हैं। इन दोनों क्वेश्चंस मुझे मैंने जो पूछे वंदना से, व्हाट कलर इज द स्काई एंड व्हाट मेक्स यू थिंक स्काई इज ब्लू, इन दोनों में से कौन सा ओपन एंडेड क्वेश्चन था? कौन सा क्वेश्चन था जिसका आंसर सही, गलत या वन आंसर का नहीं था? फर्स्ट मैम वाला या फर्स्ट सेकंड? वाला, सेकंड वाला। सेकंड इज हैज मल्टीपल आंसर्स। वरना बोल सकती थी क्योंकि हम जब भी देखते हैं तो उसका रंग ऐसे दिखता है, बट नहीं, मुझे ऐसा भी लगता है कि पिंक भी होता है कई बार स्काई। वरना बोल सकती थी ये, राइट, अगर मैं उसको अलाउ करती, राइट। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस। जब आप बच्चों से पूछते हो यस और नो या वन वर्ड आंसर्स, देन दैट इज कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। वो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट वो तब होते हैं जब आप कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हो। हाउ मेनी फिंगर्स डू यू सी राइट नाउ? टू Two. Close ended question, right? How many fingers do you think I should add to make it four? टू two, Two more. Four. Okay. What do you think I will be able to make out of my hand if I move my fingers? मैं अपने इस हाथ को यूज करके क्या क्या बना सकती हूँ अगर मैं अपनी फिंगर्स को मूव करूं? कौन सा एनिमल बना सकती हूँ? कौन सा बर्ड बना सकती हूँ? fish, dog, वो ये वाला भी कुछ करते हैं। हिरन डियर So much. Open ended question. butterfly, Butterfly. See how excited you all are? How excited you all were right now. You gave me 7 answers, 7 imaginative answers. और सबने कैमरा नहीं ऑन किए, बट आई एम श्योर आप लोग बहुत कुछ कर भी रहे होंगे अपने हाथ से, राइट? सो डू यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, टीचर? द फर्स्ट थिंग इज a good inquiry teacher and a good inquiry approach always ask open ended questions, right? So use the questions like what makes you think so, how do you know? अगर मैं बच्चे आपके सामने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दूं और एक एप्पल रखूं क्लास में लाकर, और मैं बच्चों से पूछूं व्हाट डू यू थिंक विल हैपन आफ्टर 2 days, 2 दिन के बाद लकड़ी को क्या होगा और एप्पल को क्या होगा? अगर मैं एक 2 साल के बच्चे से क्वेश्चन पूछूं कि सोचिए, निशा मलिक इज अ 2 year old चाइल्ड, मैं निशा से पूछूं, निशा देखो मैंने यहाँ पे लकड़ी रखी है और मैंने यहाँ पे एक एप्पल रखा है, आपको क्या लगता है निशा 2 दिन बाद लकड़ी को क्या होगा और एप्पल को क्या होगा? मैम एप्पल सड़ जाएगा, लकड़ी वैसे की वैसे ही रहेगी। अच्छा निशा, एक 2 साल का बच्चा क्या बोलेगा? कि एक वो 3 साल का बच्चा क्या बोलेगा? smell आ रही है। हम्म, और शायद वो उसको कोई जवाब नहीं देगा, यस वो मैम कोई जवाब नहीं देगा। आप अगले दिन फिर उसको वहां पे जाएंगे, प्लीज गो एंड सी अगेन
व्हाट हैपन? तो उसको चेंज नहीं दिखेगा, उसने लिख दिया 0 चेंज। तीसरे दिन फिर जाएगा तो उसको दिखेगा कि थोड़ा सा एप्पल की जो स्किन है वो श्रिवल होने लगी है, उसके ऊपर रिंकल्स आ रहे हैं, राइट? तो लकड़ी को कुछ हुआ? नहीं हुआ। डंडी को कुछ नहीं हुआ। इसको किया? हुआ? हुआ, बहुत कुछ हुआ, राइट? सो द चेंजेस वुड बी देयर। व्हाट इज दिस? इट इज एन ओपन एंडेड क्वेश्चन, बट मैंने बच्चों को क्या स्किल करवाई? मेरा कॉन्सेप्ट क्या है? लिविंग थिंग्स, राइट? कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट, डिफरेंशिएट। अब मैं अगर बच्चे को ये बताती, देखो डंडी होती है नॉन लिविंग थिंग और एप्पल होता है लिविंग थिंग, और लिख लो हर एक लिविंग थिंग जो होती है वो ग्रो करती है, ब्रीथ करती है, चेंज होती है। किसमें ज्यादा एक्साइटमेंट, किसमें स्किल्स ज्यादा यूज हुई? कंपेयर, कॉन्ट्रास्ट, एक्सप्लोरेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट में, Yes, right? ma'am. You taught the child to predict, which is a very important scientific skill. 5 steps of scientific principles होते हैं, आप सब में से जिसने साइंस पढ़ी होगी। हाइपोथेसिस, प्रिडिक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, एंड देन कंक्लूजन, राइट? इससे थ्योरी फॉर्मुलेट होती है। ये छोटी छोटी साइंटिफिक स्किल्स, प्रिडिक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, जो आप अपने बच्चों को, एक 3 साल के बच्चों को भी थ्रू एन इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग करवा रहे हो, राइट? सो आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस? नाउ आई Yes, एम ma'am. गोइंग टू जस्ट क्विकली चेक. Purnima, could you give me what is the question, ma'am. question number 4? How are plant around our homes different from plants in other places? Lovely. All right. What do you think, children, the teacher is trying to elicit from the students here? टीचर क्या कोशिश कर रही है बच्चों से एलिसिट करवाने की, निकलवाने की? Uh, हमारे घर के आसपास पेड़ पौधे कैसे हैं और अलग जगह पे कैसे है? लवली. तो अगर आप एक इंक्वायरी टीचर है, आपके दिमाग में क्या आउटकम बना हुआ है कि घर के आसपास, फर्ज कीजिए आपके पास 25 बच्चे हैं क्लास के अंदर, और ऑफ कोर्स अगर आपका गुड़गांव में स्कूल है तो वो गुड़गांव के आसपास आ रहे हैं, तो हम इसको मान के चलते हैं कि एक ये प्लेन एरिया है, राइट? प्लेन एरिया में जी उनको घर के आसपास क्या दिख जाएंगे? पेड़ दिखेंगे, मनी प्लांट दिखेगा, तुलसी दिखेगी, कड़ी पत्ता दिखेगा, राइट? अ लॉट ऑफ जी अशोका ट्रीज दिख जाएंगे, बट डिफरेंट प्लेसेस पर। अगर आज हम, पूर्णिमा, सोचो यस कि हम छुट्टियां बिताने के लिए आज हम चले जाते हैं शिमला, तो आपको क्या लगता है यस हमें कैसे पौधे दिखेंगे? ऊंचे लंबे टॉल। बहुत ऑफ कोर्स सारे, आपको हाँ, बच्चा चिनार के जैसे पेड़ नहीं क्रिसमस बताएगा, ट्री, उसको नाम नहीं पता कोनिकल होगा। कोनिकल प्लांट्स। कोनिकल प्लांट्स हॉर्टिकल्चर। होंगे, बट एक बच्चे को शायद उसका टर्म नहीं पता होगी, 3 साल के, तो वो बोलेगा बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, टॉल होते हैं, राइट? पत्ते यस लंबे लंबे होते हैं। अगेन कौन सी स्किल यूज कर रहा है बच्चा? कंपेयर, कंपेयर। डिफरेंशिएट। कॉन्सेप्ट्स कौन से यूज कर रहा है? शेप, टेक्सचर, बिग एंड स्मॉल, tall and short. Are you understanding what I'm saying, teachers? यस मैम। सो फ्रॉम वन क्वेश्चन, टीचर ने, पूर्णिमा ने ये नहीं पूछा कि शिमला में कैसे पौधे उगते हैं और हमारे यहाँ कैसे पौधे उगते हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन। पूर्णिमा ने यस क्वेश्चन पूछा कि क्या जो हमारे घर के आसपास पौधे होते हैं, क्या जब दादी के घर जाते हो तो क्या सेम पौधे होते हैं या कुछ अलग अलग भी होते हैं, राइट? So you यस make it very real word for the child. Relatable, relatable, immediate environment, social environment, natural environment, right? And this is the power of open-ended questions. There is no right and wrong answer. 100 concepts come out. हो सकता है एक बच्चे का नॉलेज बैंक हो राजस्थान का, वो बोले कि वहां पर बहुत कम पौधे उगते हैं,
राइट। एक बच्चे का प्रायर एक्सपीरियंस हो किसी और जगह पे रहने का, और वो बताए कि वहां पर तो मैंगो ट्रीज बहुत सारे होते हैं हमारे गांव में, right? Yes. So this way you are able to, through open ended questions, the teacher is able to get 100 types of experiences from the children. Making sense, teachers? Now if we keep this open ended questions in the center, दिस इंक्वायरी बेस्ड, जहां पर हायर ऑर्डर थिंकिंग हो रही है, और जहां पर आपने बोला कि एनवायरमेंट से हमें बच्चों को रिलेट करवाना पड़ेगा, सो वी विल नाउ स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम एनवायरमेंट. Everyone, please look at this classroom very carefully. There is something marked A, B, C, D, E लिखा हुआ है, right? आपको केयरफुली इसको देखना है और मुझे बताना है कि आपको इस क्लासरूम एनवायरनमेंट में क्या दिख रहा है, विच इज related to elements of play, which is related to skills in the center, and which is related to the developmental areas. तीन चीजें: elements of play, skills, developmental domains. प्रियंका अग्रवाल, स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? यस मैम. स्किल्स कौन कौन सी होती हैं? इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, थिंकिंग, थिंकिंग, लर्निंग, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन. वेरी गुड. और डेवलपमेंटल डोमेन्स कौन से होते हैं? 5 एरियाज ऑफ डेवलपमेंटल डोमेन्स: जी. फिजिकल, कॉग्निटिव, फिजिकल. सोशल इमोशनल. यस मैम. वेरी गुड. मॉरल एंड एस्थेटिक, राइट? और राइट. और तीसरा मैंने बोला एलिमेंट्स ऑफ प्ले. एल. Play, storytelling, conversation, art and craft, music, क्राफ्ट, म्यूजिक, फील्ड, Music. nature फील्ड ट्रिप, walk. नेचर वॉक, फील्ड ट्रिप. इन तीन चीजों को ध्यान में रखकर ये क्लासरूम एनवायरनमेंट को देखिए. मुझे बताइए, प्ले के एलिमेंट्स कौन से दिख रहे हैं, कौन कौन से स्किल्स डेवलपमेंट के एरिया दिख रहे हैं, और कौन कौन से डेवलपमेंटल एरियाज आपको लगता है यहाँ पर आपको दिखने को मिल रहे हैं? You have Swing. 2 minutes. Everyone, I will wait. Everybody, just take 2 minutes. And then anybody who's ready to share can put his hands up. Okay, Lakshmi, is it possible for you? Can you turn on your video? If it is possible. Yes, Lakshmi, go ahead, give the answer. Okay, I think Lakshmi has some issues. Anybody else who would like to give the answer? Nothing right and wrong. Anything. मैम Let's फुटबॉल. look. सॉरी Let's मैम. look this. Let's start from A, Vandana. I'm sorry. सॉरी मैम. Let's start from A. What do you see is the thing on A? ए में फुटबॉल फिजिकल डेवलपमेंट है. ए आप किसको समझ रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है? ए में क्या मटेरियल है? सॉरी मैम, मैं ए फुटबॉल को समझ बैठी थी. हाँ हाँ, कोई बात नहीं. मैम प्लीज ये डोंट से में सॉरी एट ओनली ऑल. उसका वी आर ऑल वॉल ही लर्निंग दिख रहा टुगेदर. है.
ए में ओनली उसका वॉल ही दिख रहा है जो कि थोड़ा Okay, सा okay. Let me tell you, teachers. That's why I wanted to clarify. This is a Blackboard. board. Yeah. Blackboard it This is a is. student board. Yeah. The chalkboard. Yes, ma'am. This is a student chalkboard. Very good. B पे क्या है? It's a circle. बी पे Big सर्कल circle, small circle. Very nice. Circle. big बिग सर्कल और एक स्मॉल सर्कल भी बना हुआ है बी के आगे. आपको क्या लगता है ये सर्कल क्यों बना हुआ है? कंपैरिजन स्किल. Comparison big and small. Okay. All right. And Look at shape C. concept. Twice, I think. Okay. और एक और सी बना हुआ है. टॉयज एंड डेवलपमेंट. 3 सी बने हुए हैं आपके. Yes, ma'am. Elements of play, we All can six say this. elements, play tools. Elements of play. क्या तीनों जगह पे सेम है? No, सेम ma'am. इक्विपमेंट्स है? Oh, ma'am. No, ma'am. Different. डिफरेंट है. यहाँ पे जो पड़ा हुआ है जहाँ पे मेरा कर्सर है वहां पे Yes, ma'am. पजल्स रखी हैं. Puzzles. Yes, ma'am. Books. राइट. ब्लॉक्स रखे हुए हैं. यहाँ पर बच्चों के लिए बुक्स रखी हुई हैं. Books. सिजर्स रखी हुई हैं. Scissors, ma'am. Like art Very and craft good. का सामान है, ma'am. यस. ये यहाँ पर आपके बच्चों के अगेन Toys. ड्रेसअप टॉयज रखे Dress. हुए हैं. कुछ Toys. चीजें वैसे रखी हुई हैं. 3C. ओके. लेट्स कम टू डी नाउ. Put on wall and वॉल write पे क्या है? something. रिटन समथिंग रिटन. Written something. Yes, ma'am. But not understand. हाँ, it is not Written readable. something I about understand. body part, I guess. Yes, Kuch ऐसा लिखा है. yes. A girl. Yes, ma'am. A picture of girl. A picture of girl. Somebody said body part. Let's look at E. E. Side. Self side. E. Again, there is a shelf, right? So we have done all. Did we do D? Yeah, we did the D. Okay. What do you think is this, teacher? Do you think it's a good learning environment, classroom environment? Yes, ma'am. Yes. Anybody would like to share? Please give your name and share. क्या फिजिकल डोमेन्स, क्या प्ले और क्या स्किल्स आपको लग रहा है डेवलप होंगी? एक लेटर का नाम लेके पर्टिकुलर बताइए कि मैं ए के बारे में बताना चाहूंगी. ए से आपको क्या लगता है, क्या स्किल, क्या एलिमेंट ऑफ प्ले और क्या डेवलपमेंटल डोमेन? बी अल्फाबेट पे कुछ बुक्स, बच्चे कुछ बुक्स या कप्स कुछ ऐसे हेड पे रख के बैलेंस कर सकते हैं. डेवलप बैलेंसिंग ओके. ओके. लाइन के थ्रू. Okay, so this is more of gross motor, you're trying to say. Yes. And there is of course Alphabet. element of play. Balancing सिखा सकते हैं. Yes. Coordinated movement सिखा सकते हैं. Shape का concept cognitive development हो सकती है. Good. Big and small comparison आपने बोला. Okay, all right. Hold your thought, but okay, very good. Anything else? Anybody would like to share their idea? Skill, domain and element of play. A, B, C, A, C, D, E तक आप बताइए. Alphabet C, ma'am. हाँ जी, बताइए प्रियंका. Learning concept. Alphabet C. Selves में जो toys हैं मैम, आर्ट एंड क्राफ्ट का थिंग्स हैं, एंड इसमें ब्लॉक्स हैं, पजल्स हैं. लर्निंग बेस्ड मैम. नहीं, स्किल बताइए मुझे, डोमेन बताइए और एलिमेंट ऑफ प्ले बताइए. लर्निंग आपने प्ले एलिमेंट ऑफ बताया. प्ले मैम. एलिमेंट ऑफ प्ले. विच एलिमेंट ऑफ प्ले प्रियंका? कॉन्वर्जेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट,
आर्ट एंड क्राफ्ट मैम, आर्ट एंड Lovely, क्राफ्ट। lovely. और developmental domain? ये मैम पजल्स एंड ब्लॉक्स So, will डेवलपमेंट। it be social emotional, cognitive, moral aesthetic, physical, कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मैम, or language? एंड लैंग्वेज, यस Cognitive. मैम। Okay. Lovely, lovely. Anybody else? Anybody else who would like to share? Shweta Pratibha, do you see anybody's hand raised? Because I'm not able to see everyone. Okay. So, teachers, I would like to discuss a little about this. The learning environment. Are you able to see my screen? Please Yes, read ma'am. it carefully. Inclusive, welcoming, colorful, and joyful environment. Indoor environment needs to be well lit and well ventilated, safe and inviting, inclusive, balance of both familiar, जो बच्चे को ऑलरेडी पता है, और कुछ नए एक्सपीरियंसेस, balance of materials that encourage different domains of development, right? एक बैलेंस होना चाहिए क्लासरूम एनवायरनमेंट में मटेरियल्स का, जो कि डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट को encourage करे. Allow individual work and cooperative play, means group play or individual work. It should include displays of children's work. बच्चों का काम जो होना चाहिए वो डिस्प्ले होना चाहिए, और अलाउ फॉर चिल्ड्रंस वर्क इन प्रोग्रेस, जो भी बच्चे बनाए करें वो सब कुछ वहां पर डिस्प्ले होना चाहिए. क्या ये जो हमने पहले वाला देखा, उसमें आपको उस एनवायरनमेंट में क्या आपको मटेरियल ऐसा दिखा जिससे सारे एरियाज ऑफ डेवलपमेंट डेवलप हो रहे हो? ऐसा मटेरियल है इस क्लासरूम एनवायरनमेंट में? आपने मैम बोला जो कि यहाँ वॉल पर एक सी में 3 एरियाज बने हुए हैं जिसमें यस बच्चा मैम। पजल्स खेल सकता है. शुभांगी, डू यू वांट टू से समथिंग? मैम जैसे वॉल पे जो पेंटिंग या जो हम कह रहे हैं जो डी वाला है उसमें भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बच्चों को. यस, यस, वेरी गुड, वेरी गुड. तो हम क्या इस एनवायरनमेंट को, जो हमने अभी ये चीजें पढ़ी, क्या आप कहते हो कि ये सब कुछ उसमें है? बच्चों के लिए सेफ है, इनवाइटिंग है. इनवाइटिंग मीन्स बच्चों को वहां आकर अच्छा लग रहा है, कि दे कुछ उनको खींच रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, कर यस रहा मैम. यस. है. उनकी चीजें जो वो जानते हैं वो भी अवेलेबल है, और कुछ नई चीजें हैं जो कि वो एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे. उसका फाइन बैलेंस है. जो अभी हमने एनवायरनमेंट देखा, हुला हूप्स टंगे हुए थे, यस. पजल्स थी, सिजर्स थी, टेप थी, किताबें थी, राइट? शीट्स पड़ी यस हुई मैम. हैं, कुछ डब्बे पड़े हुए हैं पुराने, रिसाइकिल मटेरियल पड़ा हुआ है. अभी यस मैम. प्रियंका ने, पूर्णिमा ने बताया कि 2 सर्कल्स भी बने हुए थे, और जो 3 सेंटर सी के बने हुए हैं उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी हो सकता है बच्चों का, राइट? यस मैम. बच्चों को इंडिविजुअल वर्क और साथ में मिलके काम करने की भी पॉसिबिलिटी है. यस मैम. ओके, अब मैं आपको 1 बाय 1 कनेक्ट कराती हूँ. According to me, and this is something I have taken from your National Curriculum Framework. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इसको एक आइडियल क्लासरूम एनवायरनमेंट बताया गया है. हमने बताया एनवायरनमेंट इज अ थर्ड टीचर. हमने बताया इंक्वायरी बेस्ड अप्रोच में हमने नहीं बताना है, हमने एनवायरनमेंट ऐसा क्रिएट करना है कि बच्चे को खुद जिज्ञासा हो जानने की
ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, मैम आज ये लकड़ी और एप्पल क्यों पड़ा है यहाँ पर, और फिर आपने क्वेश्चन पोज किया। मैं चाहती हूँ आप इन्वेस्टिगेट करो कि इसको क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा। फिर बच्चा गया, मैम ये डब्बे क्यों रखे हैं यहाँ पर आज इस वाले जगह पर, हम इनसे क्या बनाएंगे। देखो मैंने यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी रखी हुई है, क्या आप गाड़ी बना सकते हो। हाँ मैम मैं बना सकता, हम सब मिलके बना सकते हैं, राइट। सो इज द एनवायरमेंट इनवाइटिंग। टीचर ने क्या एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जिसमें उसके दिमाग में टास्क था कि उसको क्या करवाना है बच्चों से, बट हर एक टास्क की एक जगह बनी हुई थी और उसको कराने के लिए अलग अलग मटेरियल थे। आर द मटेरियल्स ऑफ वेराइटी, अलग अलग वेराइटी है मटेरियल की। Yes, ma'am. यस मैम। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट सेशन, जो लास्ट वीक का सेशन दिया था, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीजें दिखाई थी और हमने एक लिस्ट देखी थी कि इसमें से काफी सारा मटेरियल क्या है, सेंसरी। बच्चा टच करके, एक्सप्लोर करके उसके बारे में, जिसमें हमने नेचुरल मटेरियल, सेंसरी मटेरियल, पजल्स, क्यूब्स की बात करी थी। इस सी वाले 3 सेंटर्स को ध्यान से देखिए, सब में मैनिपुलेटिव्स पड़े हुए हैं, है ना। कुछ नेचुरल है, कुछ रिसाइकिल्ड है, कुछ डिफरेंट एरियाज से हैं, कुछ सेंसरी हैं, राइट। Yes. कम टू द बी पॉइंट। अभी हमने बात करी कोऑपरेटिव प्ले, इंडिविजुअल प्ले। दिस is basically for the children to sit in small group and sit in a bigger group, right? Can you see? So this environment is allowing the children to engage. टीचर 5 बच्चों के साथ बैठी है और कुछ कर रही है, और कुछ बच्चे दूसरे ग्रुप में बैठकर कुछ काम जो उन्होंने टीचर किया है बट वो बिना टीचर के सुपरविजन के कर रहे हैं। सेफ वर्क है, बिकॉज सेफ्टी हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है फाउंडेशन ईयर्स में। सो डू यू सी कोलैबोरेटिव वर्क जो हमने बात करी थी, एक इंक्वायरी क्लासरूम में कोलैबोरेशन होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, बच्चों को एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। क्या वो हमें सारी चीजें यहाँ दिख रही हैं। और अभी एक बात बहुत अच्छी मानसी ने भी बोली कि जो डी नंबर पे चीजें लिखी हुई है मैम, उनसे भी हम बच्चों को इंगेज कर सकते हैं। आज कौन सी डेट है, चलो प्रियंका आके आप चूज करो। 21, आज 21 है, आज 2 जनवरी है। आप कार्ड उठाओ, कैलेंडर पे चेंज करो, राइट। So everything which you see on this is interactive, inviting. The environment is a teacher itself. कई बार हम लोग एज टीचर्स सोचते हैं कि जब तक मैं बोलूंगी नहीं, टीचिंग नहीं होगी क्लास में। बट जब आप एज माई स्टूडेंट्स, एवरीबडी, आप एक टीचर तब बनेंगे जब आपका रोल सिर्फ एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का होगा, खुद आगे आके बोलने का नहीं होगा। आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें कि आप एलिसिट करें और फैसिलिटेट करें रादर देन लेक्चर दें। तब आपकी क्लासरूम कहलाती है एक नॉट टीचर कंट्रोल, child centric classroom, not teacher centric, not teacher led classroom, child led classroom, right। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे बैठ के आपको पढ़ा रहे हैं इसका मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा चॉइस जो है वो बच्चों के पास है। दे आर नेचुरल लर्नर्स, वो अपने आप लर्निंग कर रहे हैं थ्रू द मटेरियल जो आपने टीचर ने क्लास किया है। आपको लगता है कि ये एनवायरनमेंट कोई टीचर के बिना कोई और क्रिएट कर सकता है? नो, right? So this is what is very important for all of us to understand, that that the teacher's role in an inquiry classroom is that
the environment should elicit from the students. I would like to very quickly, जो कि आपका असाइनमेंट भी है, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स. आपने ये अपनी ट्रेनिंग में बहुत बार सुना होगा, TLMs बोलते हैं हम इसे. अपने क्लास के लिए एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल और एक्टिविटीज की लिस्ट बनाइए जो कि आप अपनी क्लास में एक लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए रखना चाहेंगे. राइट? कैन यू ऑल डू इट? Yes, teachers? Easy? Any questions? Any questions that you have? किसी को पूछना है जो मैंने आपको टास्क दिया है इसके बारे में? मैम प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन. ओके, अभी आपने यहाँ पर देखा एक क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाया गया है इंक्वायरी बेस पे, जिसमें बहुत सारे मटेरियल रखे गए हैं. राइट? डिफरेंट डिफरेंट. आपको हुला हुप्स और रिंग्स दिख रहे हैं प्लास्टिक के. आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है जो कि बच्चों के लेंथ पर है. चॉक बोर्ड, पिन बोर्ड भी बच्चों की लेंथ पे रखा गया है ताकि बच्चे आकर अपना काम लगा सके. और सी के आपको 3 कॉर्नर्स दिख रहे हैं जिसमें कहीं पर किताबें हैं, कहीं पर मटेरियल्स है, नेचुरल मटेरियल्स, कार्डबोर्ड, यूज्ड मटेरियल. ये सब मटेरियल है. मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक ऐसी लिस्ट बनाएं मटेरियल जो कि आपकी क्लास में हो सकता है, जो कि डिफरेंट एरियाज ऑफ डेवलपमेंट को बिल्ड करे. फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, राइट? ये जो हुला हुप्स हैं, इससे फिजिकल मोटर डेवलपमेंट होएगी बच्चों की. वो जंप करेंगे, पहनेंगे, रन करेंगे, शेक करेंगे. राइट? जो आपको बी और सी के 2 बड़े सर्कल, छोटे सर्कल दिखे, वो भी एक टीचिंग लर्निंग मटेरियल है अपने आप में. राइट? वो जो पुराने गत्ते पड़े हुए हैं, टेप पड़ी हुई है, कैंची पड़ी है, पत्तियां पड़ी हैं, स्टोन्स पड़े हैं, पेबल पड़े हैं, बिंदियां पड़ी हैं, दालें पड़ी हैं, चावल पड़े हैं छोटे छोटे डब्बों के अंदर. क्या वो भी टीचिंग लर्निंग मटेरियल है? यस मैम. तो हम इन्हें बोलते हैं TLMs. आप एक लिस्ट बनाएंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की. राइट? कि उन टीचिंग लर्निंग मटेरियल को गैदर करके आप क्या क्या एक्टिविटीज करवा सकते हैं अपनी क्लास में, और कौन कौन सी जगह पर. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ई पे ये वाला रखा हुआ है, यहाँ पे ये वाला सामान होगा, इस वाले सामान से हम ये करा सकते हैं. ठीक है? तो आपने भी ABCDE करके ऐसे मुझे सेंटेंस बताने हैं जिसपे कौन से एक्टिविटी, कौन सा मटेरियल. मैम लिस्ट बनानी है. लिस्ट बनानी. ओके. किसी को क्वेश्चन है? आप दिल खोल के पूछिए. मैम जब आप कॉपी पे एक लिस्ट बना लेनी है और उस पे लिख हाँ, देना कौन से पेपर में, मटेरियल से. पेपर में. ओके. पेपर पे आपने एक लिस्ट बनानी है. आपका आज का असाइनमेंट भी वैसे यही है. आपको मैं श्वेता और प्रतिभा को दे दूंगी, पर चाहे वो आप मंडे को मुझे करके दीजिएगा, पर ये लिस्ट हम मंडे को डिस्कस करेंगे. अच्छा मैम, भेजनी तो नहीं है? ओके मैम. नहीं, भेजनी भी होगी, बट कल आपको, मंडे को आपको लेके आनी है क्योंकि हम डिस्कस करेंगे और ओके इसके मैम. आपका इवैल्यूएशन होगी. प्रतिभा, श्वेता, आर यू देयर? Yes, ma'am, we are here. बताइए ओके. सो द असाइनमेंट दैट आई सेंड यू, जो मैं आपको असाइनमेंट भी आज देने वाली थी, वो कुछ MCQs क्वेश्चंस है जिनका गूगल फॉर्म बनेगा, पर वो हम मंडे को दे सकते हैं. और ये जो लिस्ट जो टीचर्स बना के लेके आएंगे, जो कि हम उनको मंडे को डिस्कस करेंगे, वो उस असाइनमेंट में डाल देंगे. बट वी वुड लाइक टू डिस्कस दैट. राइट? मेक सेंस? Anybody, can you turn on your videos for half a minute and tell me
आप सबको मेरी असाइनमेंट समझ में आ गया? यस यस मैम। मैम। बिकॉज लाइक अ गुड इंक्वायरी टीचर मैं भी देखना चाहती हूँ कि Yes, ma'am. मेरे स्टूडेंट्स को यस समझ मैम। में आया कि नहीं आया। यस मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो अब आप में से एक कोई मुझे बता सकता है आपका क्या काम है, क्या मैम लिस्ट, असाइनमेंट है? मेक ए लिस्ट, प्लीज। थैंक यू निशा जी। फिर से एक बार बताइए, लिस्ट किस चीज की होनी चाहिए, सबको समझाइए। TLM टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की लिस्ट होनी चाहिए। जी, उसमें हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? हम बहुत सारी चीटिंग करेंगे बिकॉज चीटिंग इज कोलैबोरेशन। उसमें क्या क्या होना चाहिए बताइए सबको, सबका काम आसान हो जाएगा, सब जाके फिर एंजॉय करें सैटरडे संडे। यदि उसमें हम क्या क्या मटेरियल हो सकता है? कुछ भी हो सकता है मैम, बच्चों को पढ़ाने वाला, हाँ, एंजॉयमेंट वाला, एंजॉय एंजॉय प्लेइंग आइटम्स, प्लेइंग वाला हो लवली। सकता है। उसके बाद फिर बच्चों को पजल्स वाला हो सकता है, पजल्स, हाँ जी, पेपर मेकिंग, स्किल डेवलपमेंट। हाँ जी, कॉन्सेप्ट्स भी हो सकते हैं, कोई भी कलर वाला ऐसे जो बताएंगे हम, हाँ जी। वेरी नाइस, थैंक यू निशा जी, थैंक यू सो मच। एनीबडी एल्स हु वुड लाइक टू ऐड? एनीबडी? क्या क्या हो सकता है इस मटेरियल में? सो आई एम मेकिंग इट थोड़ा सा लिटिल इजी फॉर यू, थोड़ा सा और आसान करती हूँ। आपकी लिस्ट दो कैटेगरीज या तीन कैटेगरीज में होनी चाहिए: नेचुरल मटेरियल, सेंसरी मटेरियल। नेचुरल मटेरियल क्या होता है? जो आसपास होता है, नेचर में होता है, राइट? और मुझे ये मटेरियल की लिस्ट चाहिए, और सबसे ज्यादा मार्क्स उसको मिलेंगे जो वो एक्चुअली मटेरियल एक्चुअल में लेके आएगा इकट्ठा करके, ओके मैम, राइट? लेके भी आना है। हाँ, थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं आरती, 2 दिन की छुट्टी भी तो है, हाँ जी, ओके राइट? मैम। पहले आ जाता मैम कंसाइनमेंट, हम यहाँ से सैंड वगैरह ले आते बीच साइड से। चलिए, अगर बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी कोई तो लेके आएगा, नहीं तो नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? सेंसरी मटेरियल that you can touch and feel and sense, and the other material is your natural material, of course that can also be felt, but which is available in the immediate environment, right? ओके मैम, ओके सेंसरी मैम। मटेरियल जो कि आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में, आंसर नहीं दूंगी लाइक एन इंक्वायरी टीचर, क्योंकि मैं एलिसिट कराना चाहती हूँ अपने बच्चों से, इसलिए मैं आपको क्यूज दे रही हूँ। नेचुरल मटेरियल जो आपके नेचर में अवेलेबल है, राइट? और सेंसरी मटेरियल जो आपके इमीडिएट एनवायरनमेंट में बच्चे के होता है, जिससे वो एक्सप्लोर करता है, देखता है, सुनता है, स्मेल कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, और इसमें से सब कुछ एडिबल होना चाहिए। एडिबल मीन्स अगर वो मुंह में डाल ले तो उसे कुछ नहीं हो, बिकॉज एज फाउंडेशन टीचर एवरीथिंग हैज टू बी नो सेफ, हार्मफुल, नो हार्मफुल। नो हार्मफुल। हार्मलेस, एडिबल, एडिबल, ओके सेफ, मैम। एडिबल। ओके, ओके। सबको कैटेगरी मिल गई दो। और तीसरी कैटेगरी हो सकती है प्ले इक्विपमेंट्स, रिसोर्सेस। 3 कैटेगरी हो गई: सेंसरी, नेचुरल, तीसरी क्या कैटेगरी है? इक्विपमेंट। प्ले रिसोर्सेस, रिसोर्सेज, इक्विपमेंट्स, प्ले मैनिपुलेटिव्स, मैंने प्ले। एनीथिंग। उसमें चाहे आप मुझे लिस्ट भी दे दीजिए, बट सेंसरी और नेचुरल मटेरियल में देखना चाहूंगी। मेक सेंस? मैम मैम, थर्ड कौन सी है? सॉरी, से अगेन। मैम ये थर्ड थर्ड कौन सी मटेरियल है? नेचुरल, सिंसियर और थर्ड? नेचुरल वंदना, यस सेंसरी, और यस मैम। तीसरा है आपके प्ले मैनिपुलेटिव्स, जो भी आपके मैनिपुलेटिव्स रिसोर्सेस जिनके साथ बच्चा यूजली खेलता है, राइट? ओके।
और जो कि आप एज अ टीचर अपना क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए लाना चाहेंगे। इससे रिलेटेड एक एक दो दो एक्टिविटीज सबको सोच के आनी है। डन? मैम Lovely. Very good. Thank you so much. Now I will let you go and we shall meet on Monday. ओके मैम Yes? Okay, ma'am. Thank you Thank you. everyone for joining. Thank you. We'll share your assignment on Monday. ओके मैम Okay, thank you, ma'am. Bhavna, ma'am. Thanks a lot. Thank Thank you, you, ma'am. everyone. Please enjoy your weekend. Thank you, Bye-bye. ma'am.